Good morning, sir. Good morning. Please switch on your cameras and then we will start. Sir, just hold for a minute. I'll on it. Sorry? सर बस 1 मिनट रुक जाओ मैं वीडियो ऑन करती हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक। Jayendra, switch on your video. Jayendra Kasana, switch on your video, beta. Mayuri. Okay. So let's get started, okay, without wasting any further time. So कल हमने कुछ पार्ट रिवाइज किया था, okay. Now let's move on from there. Explain the principle of superposition with a suitable example. So superposition का principle क्या होता है? Anybody remembers what is the meaning of superposition? Okay. total force on given charge due to charge of a vector. Okay, so yeah, something like that. So what is the meaning of superposition is कि let's say there is a point. It could be a charge, it could be anything. There's a point, right? An object or a point, and there are multiple other objects causing some effect. Okay, it could be some effect. For example, the effect we can be talking about could be force, right? So this is object 1, this is object 2, this is object 3, and so on, right? And this is our object O, let's say. So the effect of O1 on O, right? Then the effect of O2 on O, etc. If we add all of them, right, that will give us the resultant effect on O. Okay, so any physical property which allows for this is called that it obeys the principle of superposition. Okay, so what it means is, let's say we are talking about electric force. Okay, electric force is what we are talking about. We want to know that what is the force exerted by OI, okay, with where going from 1 to, let's say, n on O. We want to find the force on O. So what can we do is we can first find the force on O from O1. Okay, so let's say these are all positive charges, so this is the force from 1. Let's say this is the force from 2, and this is the force from 3, and so on, right? So now force is what kind of quantity? Force is a vector quantity. So when we add it up, we will have to add them up vectorially. Okay, so it should be vector addition, and we will get the net force. Okay, so anything where such a principle applies, such a quantity is said to obey the principle of superposition. So अगर हम इसको define कर रहे हैं तो we will say the principle of superposition means that the physical quantity is the sum total of the effects from multiple
bodies. Okay, so it could be, so this can be used on electric force. We will see it can also be used on electric field. Okay, in the next chapter, we will see it can also be used on electric potential. Okay, so any such thing where it can be used, but फोर्स पे कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा, फील्ड में भी वेक्टर एडिशन होगा, पोटेंशियल में स्केलर एडिशन होगा. उस वो डिफरेंस हो सकता है, बट जहां पे भी ये फॉलो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Define electric field, write down its expression, give its SI units, and state if it is a scalar quantity or a vector quantity. Okay, so what is electric field? A specific area where all electrical appliances or electrical charges are aligned. No, I didn't understand that. It is a specific area where all the electric charges are aligned. No, that is not electric field. Okay, so what is electric field? अगर हमें define करना है ना, it is the force experienced by a unit positive charge at that point. Okay, so it is nothing but force per unit charge. Okay, so electric field is force per unit charge, means it's force by charge, और charge को हम usually Q लिखते हैं, sorry, force by charge. Right now there is one more thing. When this is actually good enough, you can write this, but we should understand one thing. Although we say it is unit positive charge, but to find the field we do not use a unit positive charge. Okay, why don't we use the unit positive charge? Because unit positive charge will be 1 coulomb, right? And is 1 coulomb a small charge or a very big charge? Can somebody answer that question? Is 1 coulomb a small charge or a big charge? Any idea? So 1 coulomb is an enormous charge. It's a huge charge. Okay. Now, so you will usually find that in your numericals, you will have the unit being used as microcoulomb, right? Which is 1/1,000,000th of a coulomb. Actually, that is the kind of charges we deal with usually, like 10 microcoulomb, 100 microcoulomb, not 1 coulomb. Coulomb is a very big unit. So what do we want? If we actually bring such a strong charge to find the field, what is the problem we will have? That the field of this charge would be so big that it will disrupt the field that we are trying to test. Right? Understood? So what do? We actually bring Q, which is very, very small. Okay. And so we can also write it as limit Q tends to 0 by Q. So this is also a definition that would be given in the books. Okay. It is from a numerical perspective, both are the same. Numerically, there is no difference in the two. Okay, आपका आंसर सेम ही आना है मतलब, लेकिन physically we want the test charge to be much smaller than the source charge. ठीक है. Now the next part of the problem is give its units. What are the units of electric field?
सी यहां से यूनिट मिल जाएगा आपको डायरेक्टली. व्हाट इज द यूनिट? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. न्यूटन. और पर न्यूटन बाय यूनिट क्या कूलम. है ना, तो ये यूनिट हो गया. ठीक है. एक और यूनिट जो हम अगले चैप्टर में रिवाइज करेंगे, बट यू शुड रिमेंबर, इज वोल्ट मीटर. ओके, रिमेंबर दैट यूनिट ऑल्सो, वोल्ट मीटर. Okay, now uh, is it a vector quantity or is it a scalar quantity? वेक्टर. It's a vector. ठीक है. वैसे एक्सप्रेशन से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं. जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर वेक्टर ही रहता है, राइट? ओके, सो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. Electric field can transport energy. True, false? Can electric field transport energy? The answer is true. Okay. So इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है कि why is this question important? This is important that, you know, lot of things we study in physics, okay, is only because it helps us understand something, like the field lines जो अभी हम रिवाइज करेंगे. but you remember what field lines are, right? So ऐसे हम जो field lines स्टडी करते हैं, right? तो ये जो फील्ड लाइंस होती है, ऐसी कोई लाइंस तो होती नहीं. दिस इज एन इमेजिनरी थिंग, राइट? दे हैव नो सच एग्जिस्टेंस. वी ओनली use these to explain something. So initially even field, right, was thought to be something like this. What is it? That it was only to explain certain things. They don't have physical existence, but that is not true, right? The fields have a physical existence and they can transport energy. और जो हम बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे उसमें हमको ये समझ आता है कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है. ओके, बट the field itself can transport energy. They are physical quantities, they are not just a concept. Okay, what did Faraday mean by the term lines of force? Okay, what do they signify? Give another name for these lines of force. Faraday ने किन चीजों को lines of force कहा था? Yes, anything, any idea? What did Faraday mean by the term lines of force? He meant field lines. Okay, he used, why did he use the word line of force? Because let's say there is a charge and there are field lines he drew, right? Now these field lines were essentially, if we put a positive charge here, a small positive charge, it experienced a force in this direction. He put it here, it experienced a force in this direction. He put it here, it experienced a force like this. He put at the tip, he experienced a force like this. So that's how he drew it, by finding the direction of the force. Okay, that's why he called it lines of force. लेकिन जो अब हम टर्म यूज करते हैं, हम लाइंस ऑफ फोर्स यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं फील्ड लाइंस. Okay, what do they signify? They signify the direction
of force a test positive charge will experience. Okay, they signify the direction of the force a test positive charge, okay, important is test positive charge will experience. Given the field lines, mark the nature of charge. ठीक है, बताइए अब कि ये कौन सा तरह का चार्ज है ये. Look at these field lines and tell me what type of charge is it. Positive or negative? Yes, Sia, you are actually the only one. So, is it a positive charge or a negative charge? Sir, I think positive. हाँ, देखिए याद रखिए, पॉजिटिव से फील्ड लाइन हमेशा बाहर जाती है, ठीक है, और नेगेटिव में हमेशा वापस आती है. ये क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते हैं. फीड लाइन शुरू पॉजिटिव से होगी और किसी नेगेटिव में जाकर बंद हो जाएगी. अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहां तक जाती, नेगेटिव चार्ज ढूंढती हुई कहां जाएगी वो. जब कोई चीज मिलेगी नहीं तो कहां तक जाती जाएगी, इंफिनिटी तक जाती जाएगी, राइट. भगवान की तलाश में जैसे आदमी जाता जाता है तो ये इंफिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है. अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इंफिनिटी नहीं जाएगी, उस नेगेटिव चार्ज में जाएगी, ठीक है. तो ये तो इसके अंदर फीड लाइंस आ रही हैं, राइट. तो ये नेगेटिव चार्ज है. अब इसी तरीके से ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है, इससे फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, ठीक है. अब इसको देखिए, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. दोनों बताने हैं आपको. तो इससे भी बाहर जा रही हैं और इससे भी बाहर जा रही हैं. तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. अब एक बार इनकी शेप पे भी ध्यान दीजिए कि देखिए जो यहां से आई वो कैसा जाना चाहती थी, वो एक्चुअली ऐसे जाना चाहती थी फील्ड लाइंस, और यहां से भी फील्ड लाइंस आ रही थी. तो जब फील्ड लाइंस ऐसे आती है, फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस. सो क्या हो जाता है, ये वाली फील्ड लाइन आ रही है, उसको दिखता है कि भाई ये आ रही है, तो अपना थोड़ा सा, अगर मान लीजिए यहां से भी गाड़ी आ रही है तो ये वाली गाड़ी अपना थोड़ा रास्ता बदल लेगी, और इस गाड़ी के डर से ये अपना थोड़ा रास्ता बदल लेगी, ठीक है. तो ये इस तरह से जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो फील्ड लाइंस कैसे होंगे. देखिए अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे ही शेप के होंगे, लेकिन बस डायरेक्शन उल्टी होगी, बिल्कुल सेम शेप होगी फील्ड लाइंस की, ओके, बट दे आर इन टू द चार्जेस. ऐसे बिल्कुल जो है सेम शेप बनानी है, बिल्कुल यही लाइंस बनानी है, और लेकिन एरो इनसाइड बनाना है, तो दो नेगेटिव चार्जेस का हो जाएगा. अब ये क्या है, दिस वन. सर राइट हैंड साइड तो नेगेटिव चार्ज होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव. यस, ओके. तो देखिए ये यहां से गए इसमें चली गई, ये यहां से गई इसमें चली गई. अब ये वाली जो कहां जा रही है, ये इंफिनिटी पे नहीं जा रही है, ये कहीं दूर जा रही है और वहां से घूमकर वापस नेगेटिव में आ गई. ये भी कहीं दूर जा रही है, कहीं से घूम के वापस नेगेटिव में आ रही है. ये ऐसा लग रहा है कि बहुत, लेकिन ये जो बिल्कुल ये है, ठीक है, ये वाली जो है ये बहुत दूर से, मतलब टेक्निकली इंफिनिटी से घूम के आई और वापस यहां आ गई. ये इंफिनिटी को छूती हुई आ रही है, राइट. बाकी सब बस कहीं दूर से आ रही है, ओके. So there can be usually a one mark question asking either to identify which is the correct field line, ठीक है, etc etc. So इससे पहले let me, I think I have a few questions on that, but
just so that I don't remember if I have a question exactly, but let's say, can these be feed lines because of some charges? Are these possible feed lines because of some charges? Is it possible? तो यहां क्या हो रहा है, फीड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो फीड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, नाउ कैन दीज बी वैलिड फीड लाइंस? इलेक्ट्रिक फीड लाइंस ये वैलिड हो सकती हैं? यस सर, ये क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को। हाँ, ये क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन क्या बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो सकती है, जो हम अभी 2 चैप्टर छोड़ के रिवाइज करेंगे। मैग्नेटिक तो हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नहीं हो सकती। क्रॉस तो कोई भी फील्ड लाइंस कभी नहीं करती है, चाहे वो, उसमें कुछ सोचना नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिक हो, ग्रेविटेशनल हो, कोई भी फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप भी नहीं बनाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी। एक्चुअली हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी वो, और ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये कभी नहीं हो सकता। Okay, now, what is electric flux? Its expression and its units. Electric flux क्या होता है? What is electric flux? Electric flux is defined as amount of field passing through a given area. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो मैं कहूंगा किस एरिया में से। सो उसने कहा कि जी ये यहाँ पे ये एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो जो इसके थ्रू जितनी टोटल फील्ड जा रही है इस एरिया के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, इसका एक्सप्रेशन होता है, इसका सिंबल होता है फाई, फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम खाली फाई लिखेंगे अभी तो इस चैप्टर में, लेकिन हम आगे चल के क्या होगा, हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ते हैं। Sir, is that this one in the formula is ES cos theta 1? Yes, it is ES cos theta. Cos theta. ठीक है, तो इसमें E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और S क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है, और cos थीटा है एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस। okay, not the surface, normal to the surface and the electric field. तो एरिया को हम हमेशा नॉर्मल से समझते हैं, राइट? ओके, सिया, यू आर इन विच सेक्शन, ए और बी? सर बी सेक्शन। बी सेक्शन, so you are not doing mathematics, right? नो okay, सर। so देखो, कोई भी एरिया होता है ना, एरिया को हम पढ़ते आए हैं, हमें लगता है कि स्केलर जैसा महसूस होता है हमें एरिया, राइट? बट एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया इज अ वेक्टर। ओके, ये चीज थोड़ी सुनने में अजीब लगती है, मगर याद रखिए एरिया इज अ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस पे एक 90 डिग्री का लाइन खींच दीजिए कोई भी, वो ही इस एरिया की डायरेक्शन होती है।
तो अब ये सरफेस है हमारा, ये S है, ठीक है, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे। तो जब हम फाई निकालेंगे यानी फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसके और इसके बीच का एरिया होगा थीटा, ठीक है। जब ये एंगल 0 होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 0 इज 1। और जब ये एंगल 90 डिग्री होगा यानी फील्ड ऐसे जा रही है मान लीजिए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली क्यों हो जाएगा, क्योंकि फील्ड इसमें से पास तो हो नहीं रही है, बस इसको छूती हुई जा रही है। हमें मतलब है जो उसमें से पास होती है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला है क्यों, मतलब बिना मैथ्स को समझे आपको फिजिकली देखिए, क्योंकि आप तो मैथ्स के स्टूडेंट है नहीं, राइट। जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो तो इन चीजों को कैसे एक फॉर्मूले की तरह दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये तो वेक्टर कैलकुलेशंस है, बस दिमाग में रख लिया, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो इन चीजों को कैसे दिमाग में बिठाएंगे, उसकी उसको विजुअलाइज करके, राइट। विजुअलाइज करने में कोई मैथ्स नहीं लग रही है। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए ये मेरी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं टू मेक लाइफ इजी, राइट। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। अब आप क्या करिए कि एक सरफेस एरिया लीजिए लाइक दिस, राइट। एक्चुअली ये ड्रॉ मैंने ऐसे किया है बट इट इज परपेंडिकुलर टू द पेपर, राइट। अब आप क्या करिए इसको, मतलब ये अगर हम यहां से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा ये सरफेस एरिया लाइन जैसा। अब इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। देखिए जब टेढ़ा करेंगे तो कम फील्ड लाइंस जाएंगी ना इसमें से। देखिए मैं थोड़ी और अच्छी ड्राइंग से बता देता हूं आपको ये। ठीक है, ये हमारा एक सरफेस एरिया है जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है अभी, 7, राइट। अब मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, राइट। तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे टेढ़ा किया, लेंथ अभी भी सेम है, टेढ़ा कर दिया बस। अब कितनी फील्ड लाइन जा रही है इसमें से, 6. 5 ही जा रही है, राइट। मान लीजिए ये भी जा रही है, 5 जा रही है, ये और ये अब एस्केप हो गई। अब मान लीजिए इसको थोड़ा और रोटेट किया मैंने, तो अब कितनी फील्ड लाइन जाएंगी इसमें से, ये जाएगी, ये जाएगी और ये वाली जा रही है बस। ये सब तो एस्केप कर गई, ये 4, राइट। तो अब और कम जा रही है, तो फ्लक्स कम होता जा रहा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से कम जा रही हैं जब जब मैं उसे टेढ़ा कर रहा हूं, इसलिए ये यहां पे कॉस थीटा है, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल लिटा दूं ऐसे, तो एक भी फील्ड लाइन इसे क्रॉस नहीं करेगी, बस इसको छूती हुई निकल जाएगी, और तब cos 90 जो है 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, फाई, राइट। और फ्लक्स किससे शुरू होता है, फ्लक्स, दोनों एक ही साउंड से शुरू होते हैं, फ से, ठीक है ना। तो एक्चुअली दिस इज द ग्रीक लेटर फॉर एफ, इसलिए हम ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं। तो सिंबल्स आप ज्यादातर देखेंगे द साउंड विल मैच, ओके। तो देन यू विल देन इट इज अ लॉट इजियर टू रिमेंबर कि किसका क्या सिंबल है। हमेशा तो नहीं होगी मैच, राइट। अब एप्सिलॉन है, उसको परमिटिविटी बोलते हैं, और पी से तो ये नहीं मैच करता है, तो ई से मैच करता है। तो ये हमेशा रूल नहीं अप्लाई होगा, लेकिन कई अक्सर होता है। उस तब आपको ये याद रखना आसान रहेगा कि फाई क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इसका एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ इज फ्लक्स a scalar quantity or is it a vector quantity before we come to this? Sir, it's a vector quantity. No, flux Sir, field is a vector quantity, area is also a vector quantity, but उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट इस केस में क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी डू, राइट, वो या तो स्केलर भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है। अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को, हमेशा वेक्टर ही रहेगा, लेकिन वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो स्केलर भी बन सकता है, वेक्टर भी बन सकता है। उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है, दैट बिकम्स अ मैथमेटिक्स टॉपिक। बस हमें इतना याद रखना है कि वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका लेकिन फ्लक्स याद रखना है स्केलर है, ठीक है, जैसा मैंने बताया पोटेंशियल भी स्केलर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप कैलकुलेशंस करेंगे कि हमें वेक्टर टाइप की कैलकुलेशन करनी है या स्केलर टाइप की। स्केलर में क्या होता है, केवल साइंस होते हैं, प्लस माइनस, और इससे ज्यादा और कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो स्टेट गॉसेस लॉ, दिस इज द एलिमेंट्री लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इट? so E dot ds is equals to q by E naught. Okay, so what it says is integral of the flux, right? Integral of the flux, or I can say the surface integral of the flux. सिंपल भाषा में सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इज गिवन बाय the charge enclosed in the surface. This is the net charge enclosed in the surface divided by the permittivity of the free space. Now, what is phi? Phi is, okay, this is phi E dot, so हमने क्या देखा था, phi क्या होता है, E S cos theta, ठीक है। दिस इज द सिंप्लीफाइड वे ऑफ राइटिंग इट। वेक्टर कैलकुलस में हम इसको कैसे लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट, डॉट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन इन द नॉर्मल सेंस, ओके, दिस इज वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन होती है जिसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ई डॉट प्रोडक्ट एस वेक्टर, ये होता है एक्चुअली फाई, राइट। बट अगर S और E चेंज हो रहे हैं, राइट, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें उसका एक इंटीग्रल लेना पड़ता है अराउंड द एंटायर सरफेस। व्हाट इज इंटीग्रल, बिकॉज आप तो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? सर वी नो 11th में था ये हमारा मोशन इन 2D में। हाँ, तो इंटीग्रेशन वो तो उन्होंने तो मैथ्स की तरह when we पढ़ा have दिया, to put the limits. हाँ हाँ, वो मैथ्स की तरह ही पढ़ाया हुआ है उस चैप्टर में, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है आपको बस उतना समझना है, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, ठीक है। एक तो थोड़े फॉर्मूले याद रखने होते हैं, वो देखिए थोड़ा इंटीग्रेशन मुश्किल रहता है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स के नहीं होते उनके लिए, ठीक है। लेकिन उसका मीनिंग तो समझ आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंग्लिश से समझ लीजिए, इंटीग्रेशन किसी चीज को इंटीग्रेट करना। क्या मतलब होता है किसी चीज को इंटीग्रेट करना, क्या मतलब होता है इसका इंग्लिश में, मैथ्स को छोड़ दीजिए। मैं इन चीजों को इंटीग्रेट कर रही हूं, आप कब बोलोगे ऐसा, मैं इन चीजों को जोड़ रही हूं। यस सर, छोटे छोटे पार्ट को एक छोटे साथ छोटे जोड़ना। पार्ट्स को जोड़ देने को कहते हैं इंटीग्रेट करना, असेंबल करना किसी चीज को, वही होता है इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन ये है कि किसी भी चीज को हम पहले तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, विभाजित कर लें, और फिर उन चीजों को वापस जोड़ लें। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम इसलिए ऐसा करते हैं केवल और केवल तब हमें ये करना चाहिए जब चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग हों। ठीक है ना? तो अब जैसे कि देखिए, अब मैं आपको जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये एक शेप मैंने आपको दी कि इसका एरिया निकालिए। अब इसका, है ना, इसका एरिया निकालना तो आता नहीं ना आपको। यस सर। है ना? तो अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसको ये लगभग आपको लग रहा है कि ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा सा कुछ है ना, लेकिन यहाँ पे तो इसकी हाइट कुछ और है। मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो है 5.5 है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ये टोटल मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। अब आप फॉर्मूला रेक्टेंगल का तो नहीं लगा सकते इसमें, लेकिन अब आप क्या करिए कि इसको ना एक एक सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स में बांट लीजिए। राइट नाउ दिस plus this is very close to the total area, right? With small error. केवल इतना error है कहीं कहीं पे. It's almost close to the area. It's not exactly the same, but it is close to that area. और इस पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इन सब पे इंडिविजुअली? इंडिविजुअली ये सब रेक्टेंगल्स हैं, तो आप ये एरियाज निकाल के जोड़ सकते हैं, राइट? अब अगर मैं इन रेक्टेंगल्स को और पतला करता जाऊं, अब मैं 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मिलीमीटर थिक बना दूं, तो एरर और कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि इतने कम रेक्टेंगल में तो ये ऊपर की हाइट ज्यादा चेंज होगी नहीं ना कभी, वो बहुत क्लोज टू रेक्टेंगल। फिर मैं इसको 0.1 mm कर दूं तो और भी एरर कम हो जाएगा। ऐसा करते करते अगर मैं इसको 0 के बहुत नजदीक ले जाऊं, एक समय आएगा जब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कोई भी एरर नहीं बचा। और उसी तरह से चीजों को जोड़ने को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हम इतना छोटा सरफेस एरिया ले रहे हैं जिसमें हम ये मान सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और उसमें वहां पे उतने में फ्लक्स निकाल लिया, फिर उसके बाजू वाले में निकाल लिया, बाजू वाले में निकाल लिया, बाद में सबको जोड़ लिया, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। तो ये जो है ये भी एक बात है, ये भी एक बात है, कोई फर्क नहीं है। ये Q/ε0 होता है, इसको कहते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है? तो गॉसियन लॉ इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम यहां तक कि कूलम के लॉ को भी इससे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कूलम के लॉ से इसको डिराइव नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा फंडामेंटल लॉ है। वो बात दूसरी है कि हम इसको बाद में पढ़ते हैं, कूलम के लॉ को पहले पढ़ लेते हैं, और वो डिस्कवर भी कूलम्स का लॉ पहले हुआ था, लेकिन ये ज्यादा फंडामेंटल लॉ है। एक्चुअली दिस इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द चोजन सरफेसेस? ये बताइए इसमें क्या फ्लक्स है जो इससे बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, वुड दिस अफेक्ट द फ्लक्स? नो सर, दिस इज बिकॉज ये आउटसाइड, फील्ड लाइन के आउटसाइड है। तो इसको छोड़ देते। केवल ये अफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 11। तो 11 कूलम इसके अंदर चार्ज है, और बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम डाल सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। 8.85 × 10⁻⁻12। अब
11 upon this. We can solve it. It's not important. But this is the answer. This is what? Newton per coulomb meter square, right? This is in Newton per coulomb meter square, which is the flux.